السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جو ہماری کلاسیں چل رہی ہیں یہ نِشُلک ہیں اور یہ سیکنڈ گریڈ RPSC سیکنڈ گریڈ جو راجستھان میں ہے، اس کا ایگزام دسمبر میں ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ کلاسیں جاری ہیں۔ تو ہم اپنی پچھلی کلاس میں حروف مسوتی یعنی مسوتی حروف پڑھ چکے ہیں۔ مسوتی حروف پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ سورن شبد، ہندی میں جن کو سورن شبد کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، اور مسوتی جو حروف ہیں ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں، اور ان کی سنکھیا 3 ہے، الف، واو اور یا۔ وہ ہم پچھلی کلاس میں وستار سے بتا چکے ہیں آپ کو، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسوتی مسوتی حروف جن کو حروف صحیح، مسوتی حروف اور حروف صحیح جن کو مسوتی حروف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہندی میں جن کو وینجن شبد کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مسوتی حروف صحیح کیا ہیں؟ حروف صحیح یا مصمتی حروف، حروف صحیح یا مصمتی حروف، حروف صحیح یا مصمتی حروف کتنے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 نون زائد، نمبر 2 ہائے ملفوظ، نمبر 3 نون گننا، اور نمبر 4 ہائے مخلوط، اور نمبر 5 ہائے مخفی۔ دراصل یہ جو حروف صحیح ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے، نون اور ہا۔ ان کی تقسیم کی گئی ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، یعنی کہ ان حروفوں کو کیا کیا کہتے ہیں، اور ان کی جو آوازیں ہیں وہ کس طرح نکلتی ہیں یا کس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ نمبر 1 نون زائد، یہ حروف صحیح یا جن کو مصمتی حروف بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصمتی حروف، اور مصمتی کو ہندی میں کہتے ہیں وینجن شبد۔ کیا کہتے ہیں؟ وینجن شبد، وینجن شبد۔ نمبر 1 نون زائد، نمبر 2 ہائے ملفوظ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نون زائد، نمبر 2 ہائے ملفوظ، نمبر 3 نون گننا، نمبر 4 ہائے مخلوط، اور نمبر 5 ہائے مخفی۔ نمبر 5 ہائے مخفی۔ تو پڑھتے ہیں اپنے پہلے حروف، یعنی نون ظاہر یا نون اعلانیہ۔ جو نون ظاہر ہے اس کو نون ظاہر یا نون اعلانیہ بھی کہتے ہیں۔ اعلانیہ معنی کھلا ہوا، کھلم کھلا، ظاہر یعنی کہ اظہار کر کے۔ نون ظاہر یا نون گننا، نون ظاہر یا نون گننا یا نون اعلانیہ، نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون جس کی آواز صاف ظاہر ہو۔ نون ظاہر یا نون اعلانیہ کون سا نون؟ وہ نون جس کی جو آواز ہے وہ صاف ظاہر ہو۔ نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون جس کی جو آواز ہے وہ صاف ظاہر ہو، جیسے کان، کیا ہے؟ کان، دکان، نمک، جان وغیرہ۔ کیا ہے؟ نون ظاہر یا نون اعلانیہ وہ نون جس کی آواز صاف ظاہر ہو، جیسے کان، دکان، نمک اور جان وغیرہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 ہائے ملفوظ۔ نمبر 2 ہائے ملفوظ۔ ہائے ملفوظ کیا ہے؟ یعنی ہائے ملفوظ وہ ہا جس کی جو آواز ہے وہ پوری ظاہر ہوتی ہے۔ ہائے ملفوظ وہ ہا جس کی آواز ہے جو وہ پوری ظاہر ہو، جیسے ہمارا، ہمارا میں جو ہا ہے وہ پوری ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح گواہ، گواہ، اسی طرح ہمالیہ۔ ہائے ملفوظ وہ ہا جس کی جو آواز ہے، جس کی آواز پوری ظاہر ہوتی ہے، جس کی آواز پوری ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہمارا، گواہ، ہمالیہ وغیرہ، ہمالیہ وغیرہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 نون گننا۔ نمبر 3 نون گننا، یعنی نون گننا کسے کہتے ہیں؟ نون گننا وہ نون ہے جس کی آواز صاف نہ نکلے۔ نون گننا وہ نون ہے جس کی جو آواز ہے وہ صاف نہ نکلے بلکہ ناک سے نکلے۔
नून गुन्ना वो नून है, नून गुन्ना वो नून है जिसकी जो आवाज है वो साफ ना निकले। नून गुन्ना वो नून जिसकी जो आवाज है वो साफ ना निकले बल्कि नाक से निकले। कि कहाँ से निकले? नाक से निकले। जैसे कहाँ, सांस, जहाँ, क्योंकि वगैरह। बात समझ में आई? नून गुन्ना वो नून जिसकी जो आवाज है वो साफ ना निकले बल्कि नाक से निकले। जैसे जहाँ सांस, जहाँ सांस, कहाँ, यहाँ, वहाँ वगैरह। आगे चलते हैं नंबर 4 हाय मखलूत। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 हाय मखलूत। नंबर 4 हाय मखलूत वो हा। नंबर 4 हाय मखलूत वो हा। कौन सी हा? वो हा जिसकी आवाज उससे पहले वाले हर्फ में मिलकर निकलती है। हाय मखलूत वो हा जिसकी जो आवाज है वो अपने से पहले वाले हर्फ में मिलकर निकलती है। इस हा को अपनी, इस हा की जो अपनी अलग कोई आवाज नहीं, इस हा की जो अपनी अलग खुद की कोई आवाज नहीं है। और हमेशा दो चश्मिहा लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? हमेशा दो चश्मिहा लिखी जाती है। जैसे धागा, धागा, जो धा है वो अपने से पहले वाले में असल में क्या है? ये दा है। क्या है? दा। ये क्या है? दा। इसको हिंदी में दादावात बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे हा जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है? हा। यहाँ पे हा जोड़ देने से तो क्या बन गया? यहाँ पे हा जोड़ देने से क्या बन गया? धा बन गया। क्या बन गया? धा। जिस तरह डी, जिस तरह ये डी है, डी में एच जोड़ने से धा बन जाता है। क्या बन जाता है? धा बन जाता है। इसी तरह यानी कि हाय मखलूत वो हा जिसकी आवाज उससे पहले वाले हर्फ के हर्फ से मिलकर निकलती है। इसके अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर क्या होती है? निकलती है। इस हा की अपनी अलग कोई आवाज, इस हा की अपनी कोई अलग आवाज नहीं होती। और ये वो हमेशा क्या है? दो चश्मिया लिखी जाती है। जैसे धागा, मुझे, कभी, भारत वगैरह। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक हम नून ज़ाहिर या नून आलान या वो नून जिसकी जो आवाज़ है वो साफ ज़ाहिर होकर निकले। जैसे कान, दुकान, नमक वगैरह। हाय मलफूज वो हा जिसकी आवाज़ पूरी ज़ाहिर होती हो। जैसे हमारा, हिमालय, गवाह वगैरह। नंबर 3 नून गुन्ना वो नून जिसकी आवाज़ साफ न निकले बल्कि नाक से निकले। जैसे जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ वगैरह। और हाय मखलूत वो हा जिसकी आवाज़ उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर निकलती है। इस हा की अपनी अलग कोई आवाज़ नहीं होती। और ये हा है जो ये हमेशा दो चश्मे हा लिखी जाती है। जैसे धागा, मुझे, कभी, भारत वगैरह। आगे चलते हैं नंबर 5 हाय मुख्फी। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 हाय मुख्फी। मुख्फी कहते हैं छुपे हुए को। मुख्फी माने छुपा हुआ। मुख्फी इक्फा की जमा है। इक्फा माने छुपा हुआ। इसकी जो आवाज है पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती। इसकी जो आवाज है वो पूरी तरह हा की नहीं निकलती। जो ये हाय मुख्फी है इसकी आवाज पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती। कभी अलिफ और कभी जबर, कभी अलिफ और कभी सिर्फ जबर की रह जाती है। जैसे रास्ता, रास्ता। यहाँ पे एक्चुअल में हा छुपा हुआ है। ये है ना, ये यहाँ पे क्या है? हा। इसको क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। और ये पढ़ी जाती है रास्ता, या तो खाली जबर की आवाज या खाली अलिफ की। जैसे रास्ता, ख्वाजा, दर्जा, अफसाना वगैरह। हाय मुख्फी वो हा है, इसकी जो आवाज है वो पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती। किसकी नहीं निकलती? हाय मुख्फी वो हा इसकी आवाज पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती, बल्कि कभी अलिफ और कभी जबर, सिर्फ जबर की रह जाती है। बात समझ में आई? हाय मुख्फी हुआ है जिसकी आवाज है वो पूरे तौर पर हा की नहीं निकलती, कभी अलिफ और कभी जबर की रह जाती है। जैसे रास्ता, रास्ता, ख्वाजा, दर्जा, अफसाना वगैरह। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हुरूफ सही मुस्मती हुरूफ की तकसीम है वो हम पढ़ चुके हैं। नून ज़ाहिर या नून ऐलानिया। नंबर 2
हाय मलफूज, नंबर 3 नून गुन्ना, नंबर 4 हाय मखलूत, नंबर 5 हाय मुख्फी। आगे चलते हैं नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है जो इसको ध्यान रखना। नोट हस्ब ज़ेल ऐसे हरूफ हैं, हस्ब ज़ेल ऐसे हरूफ हैं जो अपने से बाद वाले हरूफ में मिलते तो हैं लेकिन बाद ऐसे हरूफ हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे हरूफ हैं जो अपने से बाद वाले जो हरफ है उसमें मिलते तो हैं, अपने से बाद वाले में मिलते तो हैं लेकिन जो शक्ल है उसकी अपनी शक्ल में रहते हैं। वो अपने से बाद वाले हरफ में मिलते तो हैं मगर उनकी जो शक्लें हैं वो वही रहती हैं जो शक्लें उनकी हैं। नोट नंबर 1 हस्ब ज़ेल ऐसे हरूफ हैं जो अपने से बाद वाले रूप से मिलते तो हैं लेकिन अपनी शक्ल में अलग ही रहते हैं, अपनी शक्ल में क्या रहते हैं, अलग ही रहते हैं। जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, जा, जा और वाव वगैरह। बात समझ में आई? यानी हस्ब ज़ेल ऐसे हरूफ हैं जो अपने से बाद वाले हरूफ में तो मिलते तो हैं मगर वो अपनी शक्ल में अलग ही रहते हैं। मसलन अब, मतलब क्या है अब जो आ है वो अपने से बाद वाले हरूफ में मिल तो रहा है बा में मगर अपनी शक्ल में अलग ही है, अब आ। इसी तरह दस सीन में मिल तो रहा है दा मगर अपनी शक्ल में है। इसी तरह डर, जो डर है वो मिल तो रहा है रा में मगर अपनी शक्ल में अलग ही लिखा हुआ है, वो किसी में मुस्तमिल यानी मिल नहीं रहा है। इसी तरह और क्या है, और जो अलिफ और वाव और रा तीनों आपस में मिल रहे हैं और बन रहे हैं इनसे मगर वो अपनी जो उनकी शक्ल है उसमें वो बने हुए हैं। आगे जो है नोट नंबर 2 यानी कि कुछ ऐसे हरूफ हैं, नोट नंबर 2 क्या है, कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्लें नहीं बदलती, कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्लें ही नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? शक्लें नहीं बदलती, वो अपनी शक्ल में बरकरार रहते हैं, जिनकी शक्लें नहीं बदलती यानी पूरे ही लिखे जाते हैं, जिनकी शक्लें नहीं बदलती बल्कि क्या वो पूरे ही लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, जा, जा, ता, ज़ा, वाव और हमजा वगैरह। बात समझ में आई? नोट नंबर 2 कुछ ऐसे हरूफ हैं जिनकी शक्लें नहीं बदलती बल्कि वो पूरे ही लिखे जाते हैं, जिनकी शक्लें नहीं बदलती बल्कि वो पूरे ही लिखे जाते हैं। मसलन जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, जा, सी, ता, रा, जा, जा, ता, जा वगैरह, ता, जा और क्या है, वाव और हमजा वगैरह। मसलन अदरक, क्या है, अदरक अपनी शक्ल में अलग ही है, इसकी शक्ल भी नहीं मिल रही, दा की जो शक्ल है वो भी नहीं मिल रही है। इसी तरह जो रा की जो शक्ल है वो भी अपनी शक्ल पे बना हुआ है। इसी तरह राग, क्या है, राग। अब देखो यहाँ पे जो रा है, देखो रा अलिफ में मिल रहा है मगर उसकी शक्ल वही है, रा अलिफ की जो शक्ल है वो अपनी शक्ल पे बना हुआ है। इसी तरह डाल, इसी तरह वारिस, इसी तरह निसा वगैरह। तो अब ये हुरूफ मुस्मती का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम एराब के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।